وعلیکم شاہ محمد تانترے صاحب زندہ باد، الطاف بخاری صاحب زندہ باد، الطاف بخاری صاحب زندہ باد، غلام حسن میر صاحب زندہ باد، شاہ محمد تانترے صاحب زندہ باد، مجید سنگھ صاحب زندہ باد۔ بیٹھے آپ اپنے آپ کو جس شخصیت کا ہمیں انتظار تھا، آپ اپنے ماضی کے کتابوں سے دیکھیں کہ جموں کشمیر سید محمد الطاف بخاری صاحب تشریف فرما ہے، ان کا بیان ہوگا۔ ہمارے قائد اس ریاست جموں کشمیر کے سیاست کے درشندہ ستارے غلام حسن میر صاحب، ہمارے صوبائی صدر منجیت سنگھ صاحب، جناب شریم صاحب، گولوائے صاحب اور باقی جتنے صاحبان باہر سے تشریف لائے ہیں، میں دل کی امیر گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سبھی صاحبان کو جو اس آف سیزن میں دور دور سے تشریف لائے ہیں، یہ وہ شخصیات یہاں اس وقت تشریف فرما ہے، چاہے میں کس کس کا نام لوں، جن کے دم سے ہے وجود کارواں قائم۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 20 سال سے 25 سال سے قربانیاں دی ہیں۔ آج چونکہ ہمیں اپنے قائد کی طرف سے حکم تھا کہ وہ پوچھ میں آ کر اپنے خصوصی ساتھیوں سے ملنا چاہتے ہیں، ان سے گفتگو شریف کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ہماری سمجھیں، اس کو ایک امتحان سمجھیں یا امتحان سمجھیں یا ہماری بدقسمتی سمجھیں کہ آج رات کو برانچ میں ایک بہت ہی اچھی شخصیت اچانک ان کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد اسی بینچ میں ایک فوت اور ہو گئی، اور رات کو ایک ہماری بزرگ عورت کی کمیا میں ان کی موت ہو گئی، کھڑی میں ایک موت ہوئی اور بھنگر میں ایک موت ہوئی۔ تو یہ 5 موتیں جو ہیں انہیں سارا نظام نیچے پکڑ دیا، کیونکہ جنازہ بھی پڑھنا تھا، اس لیے تھوڑی دیر ہوئی اور کچھ ساتھی اور بھی ابھی آ رہے ہیں۔ تو اس میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ یہ سبھی نعمت کا فیصلہ کیا ہے کہ ہم باہر سے تشریف لائے مہمانوں کو سننا چاہتے ہیں، اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ آپ بھی دور دور سے تشریف لائے ہیں، اس وجہ سے آپ یہ سمجھیں کہ ہمارا 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ یہ پروگرام کیوں لیٹ ہوا۔ یہ ایک ایسی علومی تھی جس میں ہماری کوئی اس میں روکنے کی کوئی صلاحیت طاقت ہم میں نہیں ہے، یہ قدرت کا کام ہے، جس کے لیے آپ کا عالم ہے۔ ہر گھر میں پریشانیاں ہیں، بے روزگاری ہے، مصیبتیں ہیں۔ اس قسم کے خواب تھے، 2 لاکھ نوکریاں آپ کو ملیں گی، 10 کلو اضافی اناج آپ کو ملے گا، اس کے بعد آپ کو اور بھی سہولیات ملیں گی، اس کے بعد آپ کے بچوں کو انسینٹیوز دیے جائیں گے۔ تو وہ سب ایک شراب اور ایک دھوکہ ثابت ہوا، چونکہ جس چیز کی بنیاد ہی دھوکے پر ہوئی ہو تو اس کے پھل بھی دھوکے والے ہوتے ہیں۔ تو اس میں اس وقت جو لیکن وہ حالت ہے ہماری ریاست کی، تو باشعور لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اس تاریکی سے ہمیں نکالنے کے لیے وہ وسعت ہے، وہ طاقت، وہ عظمت، وہ حکمت۔ جناب الطاف بخاری صاحب پارٹی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ، سابقہ کیبنٹ منسٹر جناب غلام حسن میر صاحب اتنے بیٹھے تھے، اس علاقے دے ہر دل عزیز نیتا، جموں کشمیر اپنی پارٹی جموں صوبہ دے سینئر وائس پریزیڈنٹ سابقہ MLA شاہ محمد تانترے جی اتنے بیٹھے تھے، سارے پارٹی دے جموں تو آئے ساتھی، شیڈیول کاسٹ ونگ دے پردھان بودھ راج بھگت جی، سارے کسان ونگ دے پردھان بدری ناتھ شرما جی، سارے پارٹی دے سپوکس پرسن اور مینڈر تو سارے بہت ہی ابھرتے ساتھی، کل انہوں نے بہت بڑا پروگرام مینڈر سے کروایا،
रकीब खान साहब, एसटी विंग दे जम्मू सूबा दे इंचार्ज वाइस चेयरमैन सलीम आलम साहब, इतने बैठे मेरे भरा सुरजन सिंह जी और बाकी इस इलाके के बुजुर्गों, नौजवान वीरों, माताओं, भैनों, अज ये मीटिंग जो इतने हो रही है, ये एक्टिव वर्करां की मीटिंग अज पुंछ च हो रही है। पिछले 4 दिन तो अल्ताफ साहब इस पीर पंचाल एरिया के कूट से निकले ने। रजौरी डिस्ट्रिक्ट दे विच कल मेंढर अज इत्थे है और वापसी ते कल सुरनकोट भी पार्टी की मीटिंग है। मेरे दोस्तों, साथियों, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी लगभग 6 साल पहला वजूद च आई और इस करके वजूद च आई कि जदों ये रियासत तोड़ दी, ये वाहिद रियासत जो महाराजा रणजीत सिंह के समय तो लैके फिर जिस वेले डोगरा रूलर आए, महाराजा गुलाब सिंह तो लैके महाराजा हरी सिंह तक ये आजाद रियासत सी। और उसके बाद जदों देश आजाद होया तो देश के नाल रियासत जुड़ी। बहुत पुरानी रियासत जिसनों केंद्र सरकार ने तोड़ के 2 हिस्सों च वंड दिता, यूनियन टेरेटरी बनाता। और यूनियन टेरेटरी बनाने के बाद जो इस रियासत में कुछ स्पेशल हकूक सी वो खत्म हो गए। तुसी सारे जानते हो, स्टेट होने के कारण इतने स्टेट सब्जेक्ट होता सी, जिन्हों असी रियासती पसंद। हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट सरदार मंजीत सिंह जी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट जम्मू सूबा के शाह मोहम्मद तांत्रे साहब, हमारे बोधराज भगत जी, चौधरी मोहम्मद सलीम साहब, बद्री लाल शर्मा जी, रकीब अहमद खान साहब, कैप्टन दत्ता साहब, सुरजीत सिंह जी, डॉक्टर बशीर अहमद साहब, हाजी मोहम्मद अकबर साहब, फारूक अहमद दया साहब, राजा मुमताज साहब, चौधरी मोहम्मद शफी साहब, मोहम्मद आजम साहब, गुलाम रसूल तांत्रे साहब, मोहम्मद अशरफ तांत्रे साहब, मंजूर अहमद दया साहब, चौधरी जावेद साहब, मोहम्मद सिद्दीक साहब, मौलाना मोहम्मद शरीफ साहब, गुरदेव सिंह जी, गुरचरण सिंह जी, हाफिज अहमद तांत्रे साहब, चौधरी जावेद साहब, बशारत अहमद शाह साहब, मोहम्मद इमरान साहब, मोहम्मद रशीद सोफी साहब, सुहेल अहमद साहब, मोहम्मद अशरफ साहब, बशीर अहमद साहब, पीरजादा मोहम्मद अशरफ, फारूक अहमद ठोकर साहब, चौधरी रिजवान साहब, लियाकत साहब, मोहम्मद यूनुस साहब, मोहम्मद मकबूल जरगा साहब, मोहम्मद रफीक नंदा साहब, पीरजादा मुख्तार साहब, आप बुजुर्ग। क्योंकि ये वो नारे देते हैं जो दिल को बड़े खुश लगे। खुदा का दिल चाहता है ऐसा हो जाए और ऐसे होने में ही हमारा वक्त जाया होता है, हमारे नौजवानों का वक्त जाया होता है। इसी तरह जब आर्टिकल 370 लिया हमने कहा आर्टिकल 370 नहीं खत्म होना चाहिए। इसके साथ जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात हैं, नहीं खत्म होना चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने खत्म किया, आप कैसे एक्सपेक्ट करें वो वापस ले? हमें वो हासिल करने के लिए जद्दोजहद करनी है जो हासिल हो सके। तो हमने उस वक्त कहा, स्टेटहुड की बात हमने की। जिस वक्त अताफ साहब की क़यादत में अपनी पार्टी बनी, 3 चीजों का इशू हमने उठाया। उस वक्त आप याद कीजिए, उस वक्त लोगों में खौफ हिरास का माहौल था। खौफ हिरास का माहौल ये था कि अब बाहर से लोग आएंगे, ये जो मुस्लिम अक्सरियत वाली रियासत है, इसका किरदार खत्म हो जाएगा, यहाँ बाहर वाले आएंगे, बस जाएंगे। नौकरियां भी यहाँ थोड़ी ही नौकरियां होती हैं, उन पर भी आप बाहर के कब्जा करेंगे, जमीनें जाएंगी। तो मुझे बताइए, उस वक्त ये लोग चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले थे या कोई और जमात, हमारी गलती की वजह से शायद आपने भी ये गलती की, आपने गलत फैसला किया। इस तरह आपने मुझे अपने वोट के जरिए से कम्युनिकेट किया कि अल्ताफ बुखारी आपका फैसला गलत था। वो इसी तरह मेरे साथियों, आपका भी फैसला गलत था। अगर आपने उसके बदले
किसी नेशनल पार्टी कांग्रेस को दिया होता, मैं शायद मानता कि वो आपके लिए कुछ करते हैं। मैं ये भी मानने को तैयार था कि अगर आपने यहाँ जो इंडिपेंडेंट उठे थे उनको दिया होता, लेकिन जिस जमात को आपने दिया उनको आपकी आइडेंटिटी, आपकी शिनाख्त जिसे हम स्टेटहुड कहते हैं 6 साल बाद याद आई, और वो भी आपके करके नहीं आई है। मैं वाजा करना चाहता हूं, आज जो एजुटेशन स्टेटहुड के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, हिम्मत नहीं है उनमें। ये ड्रामा है दिल्ली तक के जाने का, ज्यादा इसमें से मानिए ना निकालिए। ये उनको याद आई कि उनको लगता है उनके इख्तियारात जो वो हुकूमत में बैठे हैं शायद स्टेटहुड से वापस मिलेंगे। इसलिए ये आपके लिए नहीं स्टेटहुड की एजुटेशन करने जा रहे हैं। हम जब निकले थे हम स्टेटहुड आपके लिए ला रहे थे, क्यों आपको और मुझे स्टेटहुड जरूरत है। इनको इक्तदार चाहिए, और उस इक्तदार में अगर इनको कोई शरीक बैठता है या कहीं से पूछगछ होती है तो ये कहते हैं नहीं, वो पूछगछ नहीं होनी चाहिए। उसलिए ये आज दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हैं ताकि ये दिल्ली को मायल कर सके कि हमें ये इक्तदार की कुंजी जो आपने बंद रखी है अलमारी, इस पे डबल ताला लगाया है, सिंगल ताले में तब्दील करो। आप देखना, अगर कल दिल्ली से ये आएगा कि ये फाइलें खुद अब हल कर सकते हैं, इनको गवर्नर साहब की अप्रूवल की जरूरत नहीं है, स्टेटहुड भी भूल जाएंगे। जिस तरह इन्होंने राय शुमारी को बोला, जिस तरह इन्होंने ऑटोनॉमी को बोला, जिस तरह इन्होंने हमारे नौजवानी की राय को बोला, क्या आप जानते हैं ये वही लोग हैं जिनके FIRों की वजह से हमारे नौजवान आज भी जेलों के चक्कर और थानों के चक्कर काटते हैं। इस मौके पे जब यहाँ लोग बिजी होते हैं, कुछ लोग ऊपर पहाड़ों में गए होते हैं, कुछ अपनी दूसरे मसरूफियात में होते हैं। आज हमने जब ये वर्कर्स मीटिंग करने का सोचा तो तांत्रे साहब ने आज ऐसी शानदार मीटिंग मुनक्कद करके मैं इनको शुक्रिया करता हूँ और सभी को यकीन दिलाता हूँ कि हम इसलिए आज आपको डिस्टर्ब करने आए कि हमने सोचा कि कुछ बातें जरूरी है जो हम जाके आप लोगों से डायरेक्टली करें, आप लोगों से डायरेक्टली फीडबैक ले लें। मैं 5 दिन के लिए इस खिते में रहा, पहले अपने वर्करान से मिलता भी हूँ और उसके बाद इंडिविजुअल डेलीगेशन से भी मिलता हूँ। यहाँ पर भी वैसे ही मेरा प्रोग्राम है ताकि मैं निशानदेही कर सके वो मेरे लिए कि किन चीज़ों की प्रायोरिटी है और किन चीज़ों को हमें अटेंड करना चाहिए और हाईलाइट करना चाहिए। कोई सरकार नहीं है, लेकिन चूंकि हम आपके खिदमतगार हैं इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम आपके मसले मसाइल सुने और उनको उन ऐवानों तक पहुंचाएं जहाँ इनका हल हो सकता है। 2024 में असेंबली इलेक्शन में हम लोग कोई नुमाया कारकर्दगी नहीं दिखा सकते। शायद आपकी गलती उसमें नहीं है, कहीं ना कहीं हमारी चूक है और मैं उस चूक को मानता भी हूँ, जानता भी हूँ और तस्लीम भी करता हूँ। शायद लोगों के जज्बात 2019 के 5 अगस्त के उस फैसले से इतने मजबूर हुए थे कि उस जमात ने वो हमारे साथ शब खून किया था, उस जमात से कोई भी ताल्लुक होना गुनाह कबीरा यहाँ के लोगों ने समझा और शायद जायज तरीके में समझा। लेकिन हर गलती का खमियाजा इंसान उठाना होता है, हमारी जमात ने उस गलती का खमियाजा उठाया और इसीलिए हम आज फिर एक बार आज ये वर्कर्स का गेट टुगेदर रखने के लिए आते रहेंगे, याद दहानी भी देते रहेंगे आपको कि मिशन उठाना है, एक बार तजुर्बा करना है, एक नई जमात को आगे चलाना है। ये आपकी जमात है, किसी खानदान की जमात नहीं है और
जब भी कोई चीज आपको लगे नहीं आपका ये खादिम आपके लिए कर सकता है, मैं हाजिर हूँ। आज तो मैं इसलिए यहाँ हूँ, वापस जाऊँगा, लेकिन इस उम्मीद के साथ वापस जाऊँगा कि आप मेरी जमात को यहाँ आबियारी करेंगे, इसे मजबूत करेंगे। खुदा आपको अपनी वस्सलाम। कि आप सिर्फ 5 मिनट के लिए सीधा बैठे रहें ताकि आपको हम जो खाया गया वो आप आराम से लें तो उसके बाद आराम से यहाँ ही अंदर अंदर दे देंगे, यहाँ ही अंदर दे देंगे।